Namaste and welcome to Bodhi Sar, Knowledge in a Nutshell. Brought to you by Bodhi Booster, the knowledge portal for learners and achievers. आज 7 अप्रैल के हमारे ज्ञान के सारांश बोधि सार में आपका हार्दिक स्वागत है. We start with a motivational insight for life. Knowledge is of no value unless you put it into practice. क्या अर्थ हुआ इसका? उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिसे आप रोजाना काम में नहीं लेना चाहते या नहीं ले पाते. जितना हो सके, whatever you learn, try to put it directly or indirectly into practice. That is what will make you realize the value of constant learning. Bodhisar offers you these 7 amazing things. The most important idea being that it should be useful for all our listeners, viewers and readers for all government exams, UPSC, RBI, Bank PO, State PSC, SSC, CDS, Railways and any other government exam. आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो कुछ आप यहाँ सीखेंगे उसका प्रत्यक्ष लाभ इन सभी परीक्षाओं में सीधे मिलेगा. If you are preparing for any MBA entrance exam from CAT to ZAT to IFT or for any group discussion or interview, or simply are interested in improving your personality and confidence on a constant basis, Bodhisar is your friend for life. Brought to you by PT Education and PT's IES Academy. Make sure you keep using all the portals regularly. This is copyrighted content. Do report on the mobile number and email given in case you come across any misuse. Institutions which are interested in officially licensing our content, please contact us as per the details given. We start with the Bodhisar topics for today. 4 amazing topics lined up for you. उत्तर प्रदेश defining moment, एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर उत्तर प्रदेश के लिए आया है. Brought to you from Indian politics and post-independence India. The dangers of loan waiver schemes, ऋण माफी योजनाओं से उत्पन्न खतरे. Brought to you from Indian economy and features of Indian economy domains. Trump Xi Jinping meet from trade to geopolitics. विश्व के 2 सबसे ताकतवर व्यक्तियों की जो सभा हुई उसमें व्यापार से लेकर भू राजनीति तक के सभी मुद्दे कवर हुए. हम बहुत गहराई से इसको देखेंगे. वर्ल्ड पॉलिटिक्स सुपर पावर्स एंड फाइनली तवांग इन अरुणाचल, चाइना गेट्स एंग्री येट अगेन. चीन फिर से नाराज हो गया तवांग अरुणाचल के मुद्दे पर. रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स. सो आर वी रेडी? नोटबुक निकाल लीजिए, हर चीज लिखना शुरू करें. हियर वी बिगिन. भारत के सबसे बड़े राज्य हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग की शुरुआत हुई है. उत्तर प्रदेश, अ डिफाइनिंग मोमेंट. इंडियन पॉलिटिक्स एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के क्षेत्रों से यह विषय लिया गया है. You state huge issues. Uttar Pradesh is the most populous state of India with a population of more than 22 crores. The density being 828 persons per square kilometers. UP's nominal GSDP. क्या होता है भैया GSDP? और GSDP और GDP का क्या रिलेशन होगा? Is rupees 12.37 trillion, which is the 4th largest economy after Maharashtra, TN and Karnataka. UP's success hence will lift entire India's statistics. उत्तर प्रदेश न केवल एक विशाल राज्य है, इसके मुद्दे भी बड़े विशाल हैं. And the reason it is extremely important for this state to succeed is the sheer gravity it carries in the dynamics of India. If UP becomes successful, India becomes successful. भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक क्वाजी फेडरल राज्य, a state which believes in a union character although with federal characteristics. And here is Uttar Pradesh, the most densely populated state of India, or rather the most populated state of India. बहुत सारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ये आपको यहाँ के रीजन्स दिखाई दे रहे हैं. अपर दोआब, मिडिल दोआब. दोआब क्या होता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सभी लोग चलकर इस तरफ आ गए थे. तब फ्लाइट्स तो होती नहीं थी 5000-4000 साल पहले, क्योंकि सिंधु घाटी की नदियों का क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा परिवर्तन हो गया. इस वजह से पॉपुलेशन एंड सिविलाइजेशन मूव टुवर्ड्स द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स. ऐसा इतिहास हमें बताता है, आर्कियोलॉजी हमें बताती है. तो उस कंटेक्स्ट में दो आप बताइएगा, अपर, मिडिल एंड लोअर. रोहिलखंड, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये हैं सभी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के.
इन्हें जरूर समझ लीजिएगा कलर कोडिंग के साथ, क्योंकि यही डिस्कशन लगातार आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुंह से सुनने को मिलेंगे। ये रहे डिविजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। राज्य को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली उसे डिवाइड किया जाता है। ये 18 डिविजन्स हैं और हर डिवीजन में एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो ये आपके सामने इंडिविजुअली डिस्ट्रिक्ट्स भी आपको दिखाई देंगी। अब उत्तर प्रदेश को हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ गंगा जमुना संस्कृति एज दे कॉल इट। फ्रॉम 2001 to 2011 the largest populations of Muslims in India, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar. UP has the maximum absolute numbers of Muslims in India, 3.84 crore as per 2011 census, and the total population being 17.22 crores in India. State wise total population उत्तर प्रदेश पर हमने हाईलाइट कर दिया है। 1951 से हो रहे सेंसस के जरिए जनगणना से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की शुरुआत, ये हजार में फिगर्स हैं, 60274,000, तो वो हो जाएगा 6,02,74,000। तो 6 करोड़ 2 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 1 लाख से बढ़कर 10 करोड़ 51 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 20 लाख, 16.61 करोड़, 19.98 करोड़ 2011। अब तो 22 करोड़ से अधिक हो गई है। और भारत की जनसंख्या करस्पॉन्डिंगली 36 करोड़, 43 करोड़, 54 करोड़, 60, सबसे आखिरी कॉलम पढ़ रहा हूं, 68, 84, 102, 121 और अब तो 135 करोड़ के आसपास है। You can very clearly see that the impact of Uttar Pradesh will be enormous. Here is another look at the population side. If you look at the population distribution, then UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka, Gujarat, AP are the top 10 that we can see, and percentage wise Uttar Pradesh nearly 17% of the population. Density is 828, although Bihar, West Bengal have a much higher density. इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी मैप यदि आप बनाएंगे तो वो इस प्रकार से दिखेगा। वॉट एवर वी हैव स्टडीड, ये उसी का एक कलर्ड एस्पेक्ट है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने हमें बहुत खूबसूरती से बताया कि राज्यों के बीच क्षेत्रीय विषमताएं कितनी अधिक बढ़ गई हैं। द रीजनल इनइक्वालिटीज अक्रॉस द सेक्टर्स इन इंडिया, अक्रॉस द रीजन्स इन इंडिया इज नॉट जस्ट अ फिगमेंट ऑफ एन एनालिस्ट्स इमेजिनेशन। उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे पायदान पर है। आप देखेंगे पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी प्रति व्यक्ति आय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से यूपी नीचे से दूसरे स्तर पर है और 2014 में भी कोई बहुत सुधार नहीं हुआ। वेयर एज ऊपर के 10 स्टेट देखेंगे बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। फूड ग्रेन सप्लायर, यूपी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज फूड ग्रेन स्टॉक। इन 2013-14 यूपी कंट्रीब्यूटेड 18.9% of India's total production. It is also the largest producer of sugar cane. गन्ने की खेती सबसे अधिक यूपी में होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में। The sugar cane farmers' distress over unrealized product revenue is long standing. उत्तर प्रदेश में अनेक वर्षों से गन्ना किसानों का रोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि उन्हें उनके फसल की उचित कीमत मिलती ही नहीं। स्टेट वाइज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, टोटल फूड ग्रेन्स, आइए दो तरीके से इसे देखें। सबसे पहले हम स्टेट वाइज टोटल फूड ग्रेन और उसके बाद शुगर केन प्रोडक्शन देखेंगे। राज्यवार भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन 2006-07 से लेकर 2013-14 तक ऑल इंडिया आपको सबसे नीचे 2,65,000, दिस इज इन थाउजेंड्स ऑफ टन, सो दिस इज 265043000, तो ये मिलियन मेट्रिक टनों में हो जाएगा, 265 मिलियन मेट्रिक टन। समझ गए? उत्तर प्रदेश पे ध्यान दीजिए, उसे फिर से हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए नीचे से। एज यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश, ये यहां पर गलती से हमने उत्तराखंड पर हाईलाइट कर दिया, कोई बात नहीं, उसे ठीक कर देते हैं अभी तुरंत। ये हमने उसे ठीक कर दिया, इसे यूपी पर ले आते हैं, ये यूपी पर आ गया। आइए अब इसे फिर से देखें। So for UP you can see out of a total in 2013-14 of 265 MMT, it contributed 50. If you look at this list, you will find that Andhra Pradesh is a big producer. Similarly, there are some other states which are very big producers. For example, Bihar is not a small producer. Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab,
the star given its size. So I hope this gives you a reasonably good idea. थोड़ा और जूम इन कर लें तो ये फिगर्स आपको पिछले चार्ट के हमने जूम आउट करके दिखाए थे. शुगर केन. उत्तर प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, राइट. अभी बात की थी हमने, आंकड़े आपके सामने हैं, थाउजेंड्स ऑफ टन में फिर से ये दिखाया गया है. तो शुगर केन के केस में ये आपके सामने सारे आंकड़े दिए हुए हैं एंड यूपी इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर. इसलिए अगर वहां के गन्ना किसानों को पीड़ा होती है तो वो एक बहुत ही गंभीर मसला बन जाता है. ये फिर से हमने उसमें जूम इन करके यूपी का शुगर केन प्रोडक्शन का स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाया. Chronic and multiple problems. The reason we are discussing this is not just the size, but because many problems have become chronic. Chronic है ना, जो बरसों से चल रही हैं, जिनका समाधान ही नहीं हो रहा है. UP faces many chronic problems that the newly formed BJP government is expected to solve. क्या हैं ऐसी समस्याएं जो बरसों से चल रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन की अधोसंरचना, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत धीमी गति से हो रही आर्थिक वृद्धि, ह्यूज पॉपुलेशन, विशाल जनसंख्या, पुअर सोशल इंडिकेटर्स, बेहद खराब सामाजिक सूचकांक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एक्सेट्रा. The government of UP now needs to quickly and efficiently tackle some of the more important problems. Otherwise, a lot of problems, a lot of promises which have been made and hopes which have been raised will simply go to tatters. तो इसलिए बहुत ध्यान रखना होगा सरकार को. Gross state domestic product at factor cost, कांस्टेंट प्राइजेस 2010-11 से 2014-15 तक उत्तर प्रदेश पे फिर से फोकस करें. तो जीएसडीपी यदि आप देखेंगे राज्यों का, तो यूपी के साइज के हिसाब से उतना अच्छा जीएसडीपी नहीं है. द लार्जेस्ट विल बी फॉर महाराष्ट्र एंड यूपी विल बी इन द टॉप 5. तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ आप जूम इन करके कंपैरिजन दिखा दिया. तो महाराष्ट्र पॉपुलेशन कम है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से और सही नीतियां होने की वजह से यूपी से लगभग 2 गुना जीएसडीपी होता है. ये रहे टॉप स्टेट्स, टॉप 10 स्टेट्स एज फार एज देयर जीडीपीज आर कंसर्न. बहुत ही बढ़िया ग्राफ है, विकिपीडिया से आपके लिए हम लेकर आए हैं. भारत को यदि नंबर 6 पर मैं देखूंगा तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये है टॉप 10 स्टेट जीएसडीपी के आधार पर. और यूपी का कुल 12.37 लाख करोड़ के जीएसडीपी के साथ में, यानी $184 बिलियन के साथ, ये रोमानिया की इकोनॉमी के बराबर है. सो दिस इज द सिचुएशन. इफ यू लुक एट द कलर कोडिंग, तो जितना गहरा रंग उतना बड़ा जीएसडीपी का आकार. तो महाराष्ट्र स्टैंड्स एट नंबर 1 विथ 25.3 ट्रिलियन रुपीज इकोनॉमी. ये लेटेस्ट डेटा है, समझ गए. बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन. सोशल इंडिकेटर्स, विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूपी आल्सो हैज द सेकंड हाईएस्ट एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर 258 डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ ऑफ किड्स, एंड हाईएस्ट आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 64 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, which is a horrible figure. And similarly, there are other figures which tell us that things are very bad. UP spends rupees 452 per person on health, which is 70% less than average spending in India. तो इन सभी सामाजिक सूचकांकों पर यूपी को बहुत लंबा रास्ता तय करना है. फर्टिलिटी रेट्स को कलर कोडिंग से यदि देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे उच्च प्रजनन दरों के साथ आगे खड़े हैं, जो भारत के लिए बहुत खतरनाक स्थिति, क्योंकि इनकी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा यदि देखेंगे तो यूपी की सबसे कम तो नहीं है, वो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम वगैरह में दिख रही है, लेकिन सबसे अधिक वाले क्षेत्र में भी नहीं आ रहा है. नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के रिसेंटली रिलीज डॉक्यूमेंट्स आपके लिए डेटा हम लेकर आए हैं. टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, इन सभी में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश इज इन द कॉलम स्टेट्स विथ ग्रेटर चैलेंजेस. इसीलिए हमने शुरू में कहा यदि उत्तर प्रदेश का प्रशासन ठीक हो गया तो पूरे देश के आंकड़ों में सुधार आ जाएगा. फिफ्थ, एजुकेशन. Another challenge for the government of UP is the low learning level and high absenteeism. It has achieved high enrollment in primary schools with 83.1% rate, which is good. But the challenge is low learning outcome. बच्चे उतना सीख नहीं पा रहे हैं. High absenteeism, बच्चे गायब रहते हैं, टीचर गायब रहते हैं. And low enrollment in middle and higher middle school enrollments, especially for girls. तो इस प्रकार
जब तक इन आंकड़ों को पकड़कर कोई ठीक नहीं करेगा तब तक लॉन्ग रन में भारत के एचआर की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। Copying and mass cheating in higher education exams has destroyed the whole moral fabric of education in UP as well as Bihar. No jobs. Point 6. The low quality of education and the shortage of jobs in the state, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत भयंकर है. It is reflected in the high employment level, unemployment level with 148 youth between 18 and 29 per 1000 unemployed. National average 102 का था. Unavailability of jobs has resulted in very high migration to other states, leading to a lot of regional tensions. For example, as we see in the case of the utterances of MNS in Mumbai. Industrial scenario unoptimistic. Although Uttar Pradesh has a large number of industries, most of them are performing well below par, and as a result, the state's industrial growth is among the lowest in India. That is why this situation needs to be changed drastically. Fertile but unproductive. Our 8th point. Uttar Pradesh lies in the most fertile of northern plains, but agricultural growth is slow. 3 out of 4 rural households depend on agri, which makes agricultural reforms high on the government's agenda. इसीलिए लोन वेवर इत्यादि भी सरकार को करना ही पड़ा. Agri growth recorded the slowest compounded annual growth. Outstanding farmer loans stood at this, जिसमें से बहुत सारा सरकार ने फिर माफ किया. भारत की कंप्लीट एग्रीकल्चरल स्थिति आपके सामने है, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट सेकेंड एडवांस एस्टीमेट फॉर 2016-17. राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, स्मॉल मिलेट्स, बार्ले, कोर्स सीरियल, तुअर, ग्राम, उड़द, मूंग, एक्सेट्रा, एंड टोटल फूड ग्रेन एट द बॉटम. For 2016-17, record production of almost 272 million metric ton of food grains has happened in India, which is an excellent news. और इसके पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश और शुगर केन के फैक्ट्स बता दिए थे. इलेक्ट्रिक शॉक. अनअवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर यूपी. मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स हाउसहोल्ड्स आर अनइलेक्ट्रिफाइड. और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, उज्जवल डिस्कॉम योजना में उत्तर प्रदेश ने भागीदारी ही नहीं की, अर्थात उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसके तहत बैंकरप्ट पड़े हुए स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पुनः रिकैपिटलाइज करने का बड़ा चैलेंज सरकार ने हाथ में लिया था, केंद्र सरकार ने. पावर कट्स आर अ रेगुलर फीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. द बीजेपी हैज प्रॉमिस्ड 24/7 पावर सप्लाई. दिस इज द बिग चैलेंज. पूरे भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और उत्तर प्रदेश की कैपेसिटी एक साथ एक चार्ट में आपको दिखा रहे हैं. 10 सेकंड का समय है, स्टडी करें. पूरे भारत की कितनी कैपेसिटी दिख रही है? ऑल इंडिया ग्रैंड टोटल 315 गीगावाट्स. उत्तर प्रदेश की कितनी दिख रही है? 21 गीगावाट्स. उदय स्कीम, इनका लाइव डैशबोर्ड है. उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. टॉप 5 स्टेट जिन्होंने इसमें परफॉर्म किया है: कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड. जब हमने उत्तर प्रदेश पे जाके क्लिक किया तो आपको पता है उदय नेशनल डैशबोर्ड में क्या मैसेज आया? Due to non-submission of sufficient data, state and DISCOM dashboard health card could not be shown. ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की आज. उम्मीद यही है कि जो नई सरकार आई है वो ये पूरी स्थिति बदल के रख देगी. देखते हैं, अभी तो बहुत लंबा समय है. क्विज टाइम. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज अयोध्या, द बर्थ प्लेस ऑफ श्री राम, सिचुएटेड? कौन से जिलों में अयोध्या स्थित है? 1 2 3 4 5. बताएं क्या सही उत्तर है? The correct answer indeed is Faizabad. What is the total amount of farm loans waived by the Uttar Pradesh cabinet? अभी जो किसान ऋण माफ किए हैं उन ऋणों की एग्जैक्ट संख्या क्या है? The correct answer is 30729 करोड़. ध्यान रखिएगा, ऋणों से संबंधित ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हमने एक जगह रख दिए हैं. 30729 crore of crop loans plus 5660 crore loans taken by 7 lakh farmers which have turned into NPAs. और उससे जुड़े सारी बारीक बातें इस चार्ट में हैं, इसे आप बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा. Third and the last question, what is the wheat procurement target fixed by the UP government for this year? The correct answer is 8 million metric tons.
द डेंजर्स ऑफ लोन वेवर स्कीम्स, ऋण माफी योजनाओं से उत्पन्न हो रहे भयानक खतरे, इंडियन इकोनॉमी एंड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से हम इसे लेकर आए हैं। नंबर 1, पॉपुलिज्म ट्रम्प्स गुड इकोनॉमिक्स, लोक लुभावनवाद ने अच्छे अर्थशास्त्र को पटखनी दी। Loan waiver can be a populist poll promise but carries a huge economic load. The BJP government in its first cabinet meeting for UP in April 2017 announced a waiver of small and marginal farmers' crop loans up to 1 lakh as promised earlier. This creates an additional burden of 36359, of which crop loan amount is 30729 crores. So this is a huge promise and it is not a good thing to do. We will see why. It's not that we are anti-farmer, not at all. There are some other reasons for it. रेगुलेटर अनहैप्पी, सभी को पता है एमपीसी की बाय मंथली फर्स्ट रिव्यू ऑफ दिस फिस्कल अभी हुई थी। आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल हैज क्रिटिसाइज्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स मूव, सेइंग इट विल नॉट ओनली गिव द वे टू सच डिमांड्स इन अदर स्टेट्स बट आल्सो सच मूव्स रिजल्ट इन अ ट्रांसफर फ्रॉम द बोरोवर्स टू द टैक्स पेयर्स। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ऋण लेने वालों से करदाताओं तक ये ट्रांसफर हो जाता है एंड दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द नेशनल बैलेंस शीट। तो आरबीआई इज नॉट हैप्पी। The agri woes run deep. Agri woes यानी कृषि की समस्या बहुत गहरी है, इसे देखेंगे, अच्छे से समझेंगे अभी। लोन वेवर्स कैन मेक पॉलिटिकल सेंस इन दी शॉर्ट टर्म। छोटी अवधि में, अल्प अवधि में ऋण माफी से आपको राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, बट इट इज अनलाइकली टू हेल्प आवर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आवर फार्मर्स इन द लॉन्ग टर्म। Why? SBI chairperson Arundhati Roy recently said that loan waivers affect credit discipline. ऋण और साख में जो एक अनुशासन होता है वो बहुत बुरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है जब ऋण माफियां होने लगती हैं। फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ऑल्सो सेड दैट फ्रीक्वेंट वेवर्स अफेक्ट क्रेडिट प्राइसिंग एंड दे डिसरप्ट द एंटायर क्रेडिट मार्केट। तो अभी तक 3 लोगों का हमने विरोध देख लिया। आपको कुछ गहरी बातें बताई जाएं। नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स एज फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल सेंसस। भारत में कृषि जनगणना होती है। 1970 से लेकर 2010-11 तक की जो अलग अलग कृषि जनगणनाएं हुई हैं उनके आंकड़े आप स्क्रीन पर देखें, और उसके बाद 15 में भी आंकड़े आए हैं। ये एक हिस्टोरिकल स्नैपशॉट दिखा रहा है आपको। यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब है ऐसी लैंड्स जिस पे खेती हो रही है। तो कुल आपको इसमें ये थाउजेंड्स में है सारे नंबर्स, तो यदि थाउजेंड्स में है तो इसके आगे आप 3 जीरो लगा लीजिए। तो 3 जीरो जैसे लगाएंगे 13 करोड़ 83 लाख खेत हैं भैया भारत में, जिनमें से 9 करोड़ 28 लाख खेत मार्जिनल यानी सीमांत हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा खेत, वो जो नीली लाइन चल रही है लगातार बढ़ रही है, यानी फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है खेतों का। जनसंख्या बढ़ने का सीधा सीधा असर यहां देख लीजिए। तो ये कभी भी इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो ही नहीं पाएंगे। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस चार्ट। एरिया ऑपरेटेड बाय दीज ऑपरेशनल होल्डिंग्स, अब कुल मिलाकर कितनी एरिया ये अलग अलग खेतों में है। अब आप देखें मार्जिनल में कुल एरिया लगातार घटती जा रही है। तो टोटल एरिया ऑपरेटेड थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स में है ये। तो फिर से वही लॉजिक लगाएं तो 15 करोड़ 95 लाख हेक्टेयर में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको पता ही है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मालूम है ना, दुनिया में 7वें नंबर पे। पहले 6 देशों के नाम बताएं एरिया वाइज। तो 15 करोड़ 95 लाख हेक्टेयर में काम हो रहा है, खेती हो रही है, जिनमें मार्जिनल किसानों के पास कुल मिलाकर 3 करोड़ 59 लाख हेक्टेयर के बराबर ही भूमि है। जबकि ये कितने खेत हैं? 9 करोड़ 28 लाख खेत। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि हालात कितने खराब हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, तो यदि पूरा एवरेज निकाल लिया जाए तो औसत एक खेत का आकार भारत में 2010-11 में 1.15 हेक्टेयर ही था, जो लगातार घटता गया है। तो कहां से इनकम होगी? डेट रिलीफ नॉट अ पेनेशिया। तो आंकड़े क्यों बताए हमने आपको? अब आपको सारी बातें आसानी से दिखेंगी। पेनेशिया, पेनेशिया का क्या अर्थ होता है? इट्स अ क्योर ऑल, हर बीमारी की एक रामबाण औषधि। तो डेट रिलीफ आर नॉट अ पेनेशिया। बताइए भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम क्या है? It can be argued that farmers were not able to invest due to debt overhang. Debt overhang मतलब पुराना कर्ज था, वो चुका नहीं पा रहे थे, कर्जे में और ऋण और उससे उपजे ब्याज में दब गए। Hence एक बार माफ करेंगे तो ये फिर से उठ के चलने लगेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लॉजिक लगता है, but studies have shown that there was no evidence of greater investment, consumption or positive labor market outcomes in areas where debt relief led to significant reduction of household debt. तो पुराने
वेवर से कोई बड़ा भारी लाभ नहीं हुआ है, तो क्या पहले कोई वेवर हुआ है? देखते हैं। फिस्कल डिसिप्लिन, पांचवा पॉइंट, बिसाइड देयर इज अ ह्यूज फिस्कल कॉस्ट, इकोनॉमिस्ट हैव कैलकुलेटेड दैट लोन वेवर इन यूपी विल कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे आंकड़े आपके सामने हैं। अब 2008 में एक बहुत बड़ी किसान ऋण माफी हुई थी। आइए इसके सारे डिटेल्स आपको बताए जाएं। एग्रीकल्चरल डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम 2008 यूपीए की सरकार लाई थी। ऑन 29 फरवरी 2008 पी चिदम्बरम, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड अनाउंस द रिलीफ पैकेज, जिसे नाम दिया गया एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम। इसमें बहुत कुछ किया गया और सीमांत और स्मॉल फार्मर्स को, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को बहुत सारी रिलीफ दी गई। लेकिन अब स्टडीज बताती हैं कि लॉन्ग रन में पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फार्मिंग इनकम्स नहीं हुआ। उस डॉक्यूमेंट से कुछ स्नैपशॉट्स आपके लिए हम लाए हैं। जो ग्राफ्स आपको दिखाए थे उससे टैली करके देख लीजिए। मार्जिनल की डेफिनेशन, एनी फार्मर कल्टिवेटिंग अप टू 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ ओनली, स्मॉल 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर दैट इज मैक्सिमम 5 एकर्स, एंड अदर फार्मर्स बियॉन्ड 5 एकड़। समझ गए? ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस। तो ये याद कीजिए, अभी क्या दिखाया था आपको हमने, याद आ रहा है ना? ये सब इससे समझ में आ जाएगा आपको। और ये लैंड साइज वाइज डेफिनेशन ऑफ फार्मर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट देख ही लीजिए, मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम एंड लार्ज। तो ये परिभाषा भारत में है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है किसानों के प्रकार लैंड होल्डिंग वाइज क्या होते हैं। और उसके बाद लोन्स की डेफिनेशन उस डॉक्यूमेंट में दी गई थी। इसे आप गहराई से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा इसकी बारीकियां क्या है। टू अंडरस्टैंड द लोन वेवर स्कीम्स यू विल हैव टू गो थ्रू दीज थिंग्स, ओनली देन विल यू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी। 6. सपोर्ट यस, वेवर नो। सहयोग दीजिए, ऋण माफी मत दीजिए। There is no doubt that agriculture needs government support, but loan waiver is not the right solution. On the contrary, expenditure on loan waiver eventually leave less fiscal space for the public expenditure. सरकारों के पास राजस्व बचेगा ही नहीं पॉजिटिव कैपिटल क्रिएशन के लिए। तो इन द लॉन्ग रन हाउ विल दे एवर हेल्प करोड्स एंड करोड्स ऑफ आवर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स? 7. Long-term thinking needed. India needs investment in areas such as irrigation, water conservation, better storage, market connectivity, and agricultural research. And all this can be done by governments. The problem in Indian agriculture are structural, यानी बहुत ढांचागत समस्याएं हैं, and they need long-term solutions. Loan waivers will result in complicating the problem rather than solving it. Loan waivers will also weaken the rural credit institutions that extend loans to farmers because they will be scared to extend future loans because the farmers may think that anyway we'll get a loan waiver. तो समस्याएं ज्यादा हो गई हैं, समाधान कम है। Quiz time. Credit default swap can be beneficial for an economy as they ABC. बताइए क्या लगता है आपको उत्तर? 10 सेकंड देते हैं, पढ़िए और सोच के बताइए। The correct answer is only A and B. They do not lead to loan waivers. Why are loan waivers not helpful to farmers? अभी तक का बोधिसार देख के ये उत्तर तो आपको मिल ही गया है। ABC. ऋण माफी से किसानों को अंतिम लाभ क्यों नहीं होता है? The correct answer is option 1, all of A, B and C. क्योंकि ये केवल एक बार की रिलीफ हो जाती है, क्योंकि सरकार की राजकोषीय शक्ति कम हो जाती है मदद करने की, और क्योंकि ईमानदार किसान जो पहले चुका रहे थे वो भी बोलेंगे अब हम क्यों चुकाएं, तो सबका डिसिप्लिन टूट जाता है। थर्ड, which high court directed the state government on 4th of April 2017 to waive off loans of all the farmers irrespective of land holdings? एक बहुत बड़ा डिसीजन एक हाई कोर्ट ने भारत में अभी अभी दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्या लगता है कहां पे आया है डिसीजन ये? द करेक्ट आंसर इज मद्रास हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु। हुआ ये था कि 4 अप्रैल को एक ऑर्डर आया मद्रास हाई कोर्ट का extending the TN government farm loan waiver to all, asserting that there is no rationale behind the classification of farmers into 3 groups for the purpose of granting farm loan waiver, and that there is no intelligible differentiate taken note of by the state government. A division bench of the Madras High Court directed the Tamil Nadu government to extend the waiver to all the farmers irrespective of the extent of land holding. तो अब हाई कोर्ट ने कुछ टेक्निकल बातों को संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु सरकार से कहा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड होल्डिंग साइज आप लोन वेवर दीजिए।
ट्रम्प शी जिनपिंग मीट फ्रॉम ट्रेड टू जियोपॉलिटिक्स। दुनिया के दो सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष मिले और व्यापार से भू राजनीति तक की बातें हुई। आइए अब देखें नॉलेज इन अ नटशेल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स सुपर पावर्स। Superpowers meet. The heads of the world's two most powerful countries, US President Trump and Chinese President Xi Jinping, they met at Mr. Trump's private Florida sea resort. Trump has bitterly criticized China all along for being a currency manipulator and a regional bully. आज तक पिछले 1.5 सालों में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चीन को भर भर के आलोचना का शिकार बनाया है और कहा है कि ये मुद्रा का मैनिपुलेशन करता है जिससे एक्सपोर्ट्स इसको आसान हो जाते हैं और ये एक क्षेत्रीय गुंडा है, रीजनल बुली। बायलैटरल ट्रेड एंड सिक्योरिटी आर लाइकली टू बी द मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया। दुनिया की स्थिति अभी ठीक तो है नहीं, बिल्कुल बहुत सारे टेंशंस हैं। जिनपिंग विद देयर बेटर हाफ्स। डू यू नो मैडम शी जिनपिंग इज अ वेरी पॉपुलर फोक सिंगर इन चाइना। उनका नाम हमें बताइए कमेंट थ्रेड में। यही हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने भर भर के चीन को आलोचना का शिकार बनाया पिछले 18 महीने में। शी जिनपिंग साहब मुस्कुरा रहे हैं उनके साथ एक ही सोफे पे बैठ के। आइए कुछ ग्राफ्स को देखें और समझें चाइना और अमेरिका का रिश्ता। चाइनाज नेट एक्सपोज टू द यूएस। अमेरिका को कुल इनका जो निर्यात होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, आप देख सकते हैं 250 बिलियन डॉलर का साल में चीन निर्यात करता है अमेरिका को। सो अमेरिका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। उसकी सारी समृद्धि अमेरिका को निर्यात करने पर टिकी हुई है। चाइना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए 1994 में क्या थे, कुछ भी नहीं थे और लगातार मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स करके 2014 में वो 4 ट्रिलियन डॉलर और फिलहाल 3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गए, यानी 3000 बिलियन डॉलर। भारत के 380 बिलियन डॉलर के आसपास हैं, 10 गुना कम। एंड चाइनीज युआन पर डॉलर यू कैन सी इट इज ऑल आर्टिफिशियली मैनेज्ड और यही इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। Number of nuclear weapons, as you can see very clearly, other than Russia and US, no one possesses anything beyond 300. इसकी अपनी एक बिल्कुल अलग कहानी है, उस पर हमने अलग से बोधिसारों में बात की है। You can go to the बोधिसार वेबसाइट, open the categories page और उसमें न्यूक्लियर वेपन्स पे क्लिक करेंगे, आपको इससे जुड़े हुए बोधिसार मिल जाएंगे। China's economy depends heavily on US consumer. चीन के कुल निर्यातों के कौन कौन हिस्सेदार हैं? US, Japan, Korea, Germany, Vietnam and India are the top 6 market, but practically US, Japan and Korea constitute almost 28 to 29% of China's exports. Whereas the US's top export markets are Canada, Mexico and then China, in fact less than 9%. So China is not as important to America as America is to China. समझ गए ना? ऑल हेल किम, ऑल हेल किम कहना ही पड़ेगा। ताइवान में रहना है तो किम 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 करना है। नॉर्थ कोरिया एंड ट्रेड आर लाइकली टू बी हाई ऑन द एजेंडा। प्रेसिडेंट शी इज अ हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड एन एस्ट्यूट डिप्लोमैट, whereas President Trump is given to his impulses and he is a businessman involved in politics. तो इसका नतीजा क्या होगा किसी को नहीं पता। 9/10 of North Korea's official goods trade is with China. So in fact China is the only country that has any kind of a influence over North Korea. अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उत्तर कोरिया के सोच को यदि कोई प्रभावित कर सकेगा तो वो चीन होगा और ये ग्राफ से वो समझ में आता है। उत्तर कोरिया का निर्यात और आयात का ग्राफ चीन के साथ। Only China over North Korea, 0.3. China is the country that has the most influence. And China is North Korea's largest trading partner. Trump may try to persuade Xi to adopt much tighter economic sanctions against North Korea, and he has already threatened that if you don't do it, we will be forced to do it. Fourth, Middle East. जब शी साहब अमेरिका पहुंचे उसी वक्त सीरिया में बहुत भीषण केमिकल गैस अटैक हुआ। बशर अल असाद ने कहा हमने नहीं किया, अमेरिका ने कहा तुम ही ने किया और उनके एयर बेस पे आप देख रहे हैं हमला कर दिया गया। अल शरात एयरफील्ड वाज द टारगेट ऑफ यूएस अटैक। बहुत सारी मिसाइलें वहां छोड़ी गईं और बशर अल असाद को यह संदेश दिया गया कि अमेरिका का यह पहला डायरेक्ट हमला है। अभी तक वो सिर्फ रिबल्स के थ्रू काम कर रहा था। This is the first American attack. Russia is very angry. Russia has said this is a bad idea. Syria has said you are an idiot. I did not do it. Why are you hitting me? Naturally, that's a very natural stand they will take. The recent chemical attacks are an important issue. Trump has already said he was changing his view of the Assad regime and he has no affinity for them.
द यूएस हैज ऑलरेडी मेड अ डायरेक्ट मिलिट्री क्रूज मिसाइल असॉल्ट, जो आपको अभी दिखाया था, ये असॉल्ट शी जिनपिंग साहब अमेरिका में थे उसी वक्त हुआ। द मिलिट्री एक्शन मस्ट हैव बीन कैरिड आउट विदाउट एनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंडोर्समेंट, उतना समय ही नहीं था। तो ये सब में चीन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चीन और रूस दोस्त हैं और रूस इस सब पे बहुत नाराज होगा कि आपने सीरिया पे हमला किया, और सामान्यतः चीन रूस के साथ और रूस चीन के साथ खड़ा दिखता है। फिफ्थ, फ्रॉम टफ टू सॉफ्ट, throughout his election campaign Trump has repeatedly criticized China's trade policies. He even labeled China as a currency manipulator. What is a currency manipulator? जो अपनी करेंसी को ऐसा मैनेज करे कि निर्यात आसान हो जाए। तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हाउ आर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ एनी करेंसी। क्या होता है करेंसी की कीमत से किसी देश के निर्यात और किसी देश के आयात पर क्या असर पड़ता है। वन चाइना पॉलिसी, ताइवान इज अनदर मेजर इशू। President Trump took a congratulatory call from the president of Taiwan, Tsai Ing-wen. China saw this as a breach of the long-standing One China policy. एक चीन नीति ये कहती है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग नीति है। बेसिकली ये कि डायरेक्टली अपोज ना करें एक दूसरे को। और ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट बनते ही ताइवान के राष्ट्रपति महोदया का एक कॉन्ग्रेचुलेटरी कॉल लिया और बाद में उनसे अमेरिका के शीर्ष नेता मिले भी, जिससे चीन बेहद भड़का हुआ है। South China Sea Tangle, point 7. Chinese activity in South China Sea worried many of the US allies. China has turned reefs in the sea into reinforced militarized island, जो कि बहुत खतरनाक है। Philippine President Rodrigo Duterte, in a move possibly timed to coincide with the Trump-Xi summit, has ordered his military to fortify up to 10 islands with the Spratly group that his country controls. ये है दक्षिण चीनी सागर, और चीन ने अपने मन से एक 9 डैश लाइन जो बढ़ा के बाद में 10 डैश कर दिया था कि ये सब मेरा है, जबकि वहां फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, इन सब के दावे हैं, ब्रुनेई इत्यादि के, लेकिन चीन इन सभी पे दादागिरी कर रहा है, और क्योंकि ये छोटे देश हैं इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। क्विज टाइम, वेयर इज द मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड शी जिनपिंग बीइंग हेल्ड? बताइए। द करेक्ट आंसर इज द प्राइवेट रिसोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन द पाम बीच, फ्लोरिडा। सेकेंड, विच कंट्री केम अंडर डायरेक्ट यूएस मिलिट्री अटैक जस्ट अहेड ऑफ द मीटिंग? ये तो आपने 1 सेकंड में बता ही दिया, सीरिया, एब्सोल्युटली राइट। विच कंट्री टेस्ट फायर्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल अहेड ऑफ द फर्स्ट मीटिंग? इसका तो एक ही उत्तर हो सकता है दुनिया में, और वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया। वाह 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 वाह। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे इनपुट्स बहुत मददगार सिद्ध हो रहे हैं। तवांग इन अरुणाचल, चाइना गेट्स एंग्री अगेन। चीन पुनः नाराज हुआ, बार बार नाराज हो जाता है, हमारा दोस्त ही है। Two giants unmatched. Both China and India are two of the fastest growing economies, attracting a tremendous amount of global attention. Not just that, they are also the biggest nations in the world. Both have vowed to enhance the bilateral and multilateral cooperation. However, the biggest problem, impediment का मतलब होता है obstruction, that the two countries face in this path of improved ties is the massive border conflict. इन दोनों के बीच बहुत लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद की वजह से रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दलाई लामा, तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर विजिटेड अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2017। अरुणाचल प्रदेश भारत की अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और भारत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को यहां जाने की अनुमति दी। भारत ने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु यहां अवश्य जा सकते हैं, और वो वहां गए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री समन्ड इंडियन एम्बेसडर विजय गोखले एंड लॉन्च्ड एन एंग्री प्रोटेस्ट ऑन द विजिट। चाइना कंसिडर्स द दलाई लामा एज अ सेपरेटिस्ट फोर्स अनसेटलिंग पीस। चीन ये मानता है कि दलाई लामा तो एक बहुत ही विघटनकारी ताकत है जो वहां पे शांति लगातार भड़काते रहते हैं, जबकि दलाई लामा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दरअसल जब से तिब्बत पर कब्जा चीन ने किया है, उसने पूरी कोशिश की कि वहां के लोगों को हान चीनियों से प्रतिस्थापित करके वो तिब्बत का बेसिक कैरेक्टर बदल दे। बट द तिब्बतन्स आर एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पीपल एंड चाइना हैज फेल्ड टू डू दैट, हेंस इट हैज इंस्टॉल्ड इट्स ओन रिलीजियस लीडर देयर। अभी देखेंगे। इट्स ऑल माइन, नॉट योर्स। China claims India's northeastern state of Arunachal Pradesh and refers to the region as South Tibet or Zhengnan. The border issues have escalated in the recent past with frequent intrusions by Chinese troops in the Indian territory. अनेकों बार ऐसा हुआ है, हम सभी ने इसके बारे में मीडिया में पढ़ा ही है, और ये झगड़ा फिलहाल तो सेटल होता नहीं दिख रहा है।
नाउ दिस इज द कंप्लीट इंडियन टेरिटरी। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर यदि आप ध्यान लगाएंगे तो यहां चीन इस प्रकार के दावे करता है कि ये मैकमोहन लाइन जो है डिस्प्यूटेड है, हम नहीं मानते, और ये पूरा अरुणाचल हमें हमारा है, इसीलिए हम स्टेपल्ड वीजा भी देंगे। जबकि भारत बिल्कुल क्लियर अपना स्टैंड बता चुका है कि नथिंग डूइंग। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि झगड़े वाला क्षेत्र क्या है। Xinjiang to Tibet. During the 1950s, the People's Republic of China built a 1200-kilometer road connecting Xinjiang, जो पहले ईस्ट तुर्किस्तान था, फिर माओ ने उस पर कब्जा किया, and Western Tibet, to which 179 kilometer ran south of the Johnson Line through the Aksai Chin region. अब अक्साई चिन क्षेत्र भी जो भारत ने अपना क्लेम किया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसमें जॉनसन लाइन के नीचे से उन्होंने रोड बना दी, जो कि बहुत ही गलत किया, और भारत ने इसके ऊपर काफी विरोध पहले भी दर्ज कराया है। 62 war. China and India fought a brutal border war in 62 and the border issues concerning Arunachal Pradesh has since escalated and no resolution has evolved. Why is China interested in claiming Arunachal Pradesh? What is China's motive behind it? तो बड़ा सवाल ये उठता है कि 1962 के बाद से ही चीन का दावा क्यों बना हुआ है, चीन को आखिर इससे मिलेगा क्या। ये रहा पूरा का पूरा अरुणाचल और उसके जिले। आपको सबसे बाईं ओर तवांग दिखेगा। तवांग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस मोनास्ट्री फॉर द टिबेटन बुद्धिस्ट पीपल। बुद्धिस्ट लोगों के लिए तवांग दूसरी सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से है। इस वजह से चीन को यह बहुत खतरा है कि उनकी धार्मिक भावनाएं पुनः प्रबल होकर पृथकतावादी आंदोलन आग पकड़ सकता है। तिब्बत इज माइन, सो अरुणाचल इज माइन। चीन कहता है China bases its claim on Arunachal Pradesh by citing reason that there existed historical ties between the Tawang monastery in AP and the Lhasa monastery of Tibet, and hence Tibet is part of People's Republic of China, so should be Arunachal. लॉजिक इनका ये है कि क्योंकि लाजा जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा है, वहां का जो मोनास्ट्री था उसका और तवांग के बीच में ऐतिहासिक रिश्ते थे। अब क्योंकि ल्हासा हमारा है तो तवांग भी हमारा है। अब कल को बोलेंगे तवांग का दिल्ली से रिश्ता था तो दिल्ली भी हमारा है। तवांग्स इंपॉर्टेंस, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें आखिर किस प्रकार से धार्मिक स्तर पर तवांग महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको हमने बताया था दलाई लामा का इशू यहां सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो तवांग्स का इंपॉर्टेंट अब हम यहां पर आके थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश एंड पर्टिकुलरली द रीजन ऑफ तवांग holds a major place of importance in Chinese context. चीनी परिप्रेक्ष्य में यह बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश provides security to the kingdom of Bhutan in its entire eastern flank. अब आप यदि भूटान का नक्शा देखें तो अरुणाचल प्रदेश उसके पूर्वी क्षेत्र को पूरी सुरक्षा प्रदान करता है। यह अरुणाचल है, वो भूटान है, स्क्रीन पर अच्छे से देख लीजिए, और इस मैप में भी आपको वो दिखेगा। If Tawang is absorbed by China, then Bhutan will be surrounded by China on both its flanks, which would be unfavorable for India's security and very alluring for China. चीन के लिए एक बहुत बड़ा लालच है कि भूटान के पूर्वी हिस्से पर भी वो अपना ही कब्जा कर ले, जो आज नहीं है, और इस वजह से भारत के लिए वो खतरा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि भूटान भारत का अभिन्न मित्र है और भूटान को भारतीय सेना से बहुत मदद और ट्रेनिंग लगातार मिलती है, और भूटान से हर प्रकार की मदद जो भी वो कर सकते हैं भारत को हमेशा मिली है। One India policy. So India also played the same game with China, which China plays with the rest of the world and America. China's aggressive stance toward the region of Arunachal Pradesh and principally toward Tawang is a threat to India's security and sovereignty. In 2014, India had actually proposed China should acknowledge one India policy to resolve the dispute. China naturally नाराज हुआ और ज्यादा stapled visa issue करने लग गया. Twist time. From which district was Tawang carved out as a separate district? टेक्निकल सवाल है। इसका सही उत्तर है वेस्ट कामेंग, पश्चिमी कामेंग जिला। Who is the Beijing appointed पंचन लामा ऑफ तिब्बत? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां की धार्मिक भावनाओं को जड़ से खत्म कर देने के लिए चीन ने स्वयं एक पंचन लामा वहां पर नियुक्त किया। उनका नाम बताएं। द नेम इज ग्यानचेन नोरबू। ये रहे वो सज्जन जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने नियुक्त किया है, ग्यानचेन नोरबू। और इसलिए तिब्बत के लोग इस लामा से भयंकर नफरत करते हैं। By what name does China refer to अरुणाचल प्रदेश? आपको बताया था साउथ तिब्बत और ज़ैंगनैन। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आइए एक अंतिम मोटिवेशनल थॉट आज के लेसन का देखें। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। डॉक्टर कलाम साहब ने क्या कहा? सीखना ही रचनात्मकता को जन्म देता है, रचनात्मकता हमें विचारवान बनाने की ओर ले जाती है।
विचार हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान से आप महान बनते हैं। तो मेरे महान दोस्तों, महानता की यात्रा बराबर जारी रखिए। बोधिसार ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। तो ये था नॉलेज इन अ नटशेल का हमारा आज का लेसन। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइए, और आज हमने जितने भी प्रश्न पूछे उन सभी के उत्तर हमें कमेंट थ्रेड में दीजिएगा। बहुत जल्द अगले सत्र के साथ हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। आइए अब बोधी स्टार्स पर एक क्विक नजर डालें। हमें बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टिमोनियल लिख के भेजने वाले हमारे प्यारे प्यारे बोधी स्टार्स, बोधी सितारों में मधुर यमोय राय फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू वेरी मच मधुर यमोय, आपने बहुत ही मीठे शब्दों में हमारी तारीफ की है। थैंक यू सो मच, वी ट्रूली रेसिप्रोकेट द सेंटिमेंट। विजय त्यागी फ्रॉम मोदी नगर, चेतन कुमार फ्रॉम बिलासपुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल का इस्तेमाल करें। प्रिंस अनुपम सिंह फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, आकाश देवांगन फ्रॉम न्यू दिल्ली, भावना मिश्रा फ्रॉम खड़गपुर, प्रियांक शर्मा सहारनपुर, गौरव आर भोपाल, हर्षा शर्मा विशाखापट्टनम एंड मेनी मेनी मोर। थैंक यू सो मच। और इसी प्रकार बोधी बूस्टर चैनल से जुड़े रहें और पूरा पूरा लाभ लेते रहें। तो अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत जल्द आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।